hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, 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 glory to God. Hallelujah. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. We give you glory. We give you honor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबों का प्रभु यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम से हम अभिवादन करते हैं। And once again I would like to say like this. और एक बार फिर से मैं यूँ कहना चाहूँगा। God whom we serve, He is the good God. महान परमेश्वर जिसकी आप और मैं यहाँ आराधना और सेवा कर रहे हैं वो महान और अद्भुत परमेश्वर। And there is no one else like Him. यहोवा भला है और उसके समान दूसरा कोई। He is El Shaddai वो God. तो एल शदाई परमेश्वर है। He was, He is, and He is to come. वो जो था, जो है और जो आने वाला। So I welcome each one of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ for this Fueling Friday service. तो आज के फ्यूलिंग फ्राइडे सर्विस के लिए हम आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। We say this Fueling Friday means फ्यूलिंग फ्राइडे का मतलब ये है people, you all can come here कि आप सब यहाँ आए in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। You can join us live as आप well, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते and you हैं can receive the spiritual fuel for your life, और आत्मिक ईंधन को आप अपने जीवन के लिए प्राप्त and you करें can go ahead for the और word of God. आगे बढ़ते जाए परमेश्वर की महिमा की। See, the fuel is required for every vehicle to run. हर एक गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन लगेगा। I don't know how cost that car will be. चाहे How costly that car will be, कितनी भी कीमती गाड़ी या कार क्यों ना हो or your vehicle or anything. और कोई भी गाड़ी जो आप चलाते हो, If fuel is not there, अगर उसमें ईंधन खत्म हो जाए, if fuel is not there, अगर उसमें ईंधन ना हो that vehicle is of no use. तो वो गाड़ी कुछ भी काम की नहीं। Are you all agree with me? क्या आप सहमत हैं? Are you all agree with me? यस। We buy car, we buy moped or even plane as well, चाहे हम कार खरीदे, कोई छोट गाड़ी खरीदे या फिर कोई हम जहाज क्यों ना or खरीदे train. या कोई हमारी ट्रेन क्यों ना हो, Fuel is required. ईंधन की आवश्यकता सारी चीजों में है। Fuel is required in all these to function the way it should be. और इन सारे वाहनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि ये उस कार्य को कर सके जिसके लिए बनाए गए। If there is no fuel अगर ईंधन खत्म हो जाए inside the vehicle, उस गाड़ी, उस कार या उस किसी भी वाहन that पे, vehicle will stop somewhere. वो कार या गाड़ी वहीं थम जाएगी, It will not work. वो आगे नहीं बढ़ सकती। And another thing, और दूसरी बात, that vehicle will not move from one place to another place. वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता। It will stand in one place. वो तो बिल्कुल स्थिर होकर एक जगह थम जाएगी। I want to tell you something. मैं आज आपसे कहना चाहता Some हूँ, believers, some Christians, they are like that. कई बार मसीह लोग भी ऐसे ही हो जाते They हैं। never know their fuel, has run out. उनको याद भी नहीं, उनको पता भी नहीं कि उनके अंदर का आत्मिक ईंधन खत्म हो चुका है। And that's why years pass, they are in the same place. और इसलिए सालों भी जाते हैं, वो एक ही स्थान में है, They're not moving ahead. वो आगे नहीं बढ़ रहे। I want to tell you, dear मेरी sister, बहन, मैं आपसे कहना I चाहता want to हूँ, tell you, my dear भाई, brother, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, check your fuel. आइए अपने अपने आत्मिक ईंधन की आज हम जांच I'm करें। talking about the spiritual fuel. मैं उस आत्मिक ईंधन के विषय में कह रहा हूँ। The way car and moped, they require petrol or diesel. इस प्रकार से हर एक वाहनों में हमें ईंधन लगता है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या कोई और बात In हो। same way, इसी रीति से you and me, when we are called the children of जब God, आप और मैं परमेश्वर की संतान है, we need fuel. आपको और मुझे भी एक ईंधन की आवश्यकता है। We need a fuel. आपको और मुझे भी ईंधन की आवश्यकता है। Fuel that comes from और above. वो ईंधन स्वर्ग से आता And है। that the name of that fuel is the Holy और उस Spirit. ईंधन का नाम है पवित्र आत्मा, The power of God परमेश्वर की सामर्थ। that takes you from one place to another place. वो वही है जो आपको आगे बढ़ाता है, That fuel will ignite you. और वही ईंधन है जो आपके अंदर अग्नि को ले आता है। So let's today check ourselves. तो आइए आज हम में से प्रत्येक अपने आप को हम जांचें, Do I have this fuel? क्या मेरे अंदर ईंधन पाया जाता है? Do I have that fuel? क्या मेरे अंदर ईंधन पाया Am जाता I है? moving ahead or am I just standing in one place? क्या मैं अपने जीवन में एक स्थान में जम गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ, या मैं आगे बढ़ रहा हूँ? I want to tell you मैं आपसे कहना चाहता हूँ, once again, एक बार फिर से, all those disciples, वो सारे चेले after death
of Jesus Christ, यीशु मसीह की मृत्यु के he पश्चात resurrected, he went to heaven. हम जानते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ और उनका स्वर्गारोहण हो गया। I love that incident. ओ मुझे वो घटना बड़ी पसंद है। These disciples, they were sitting in upper room in one place. वो सारे चेले उपरोठी कोठरी में एक स्थान में इकट्ठा थे। And the Bible और says, बाइबल बताती some of है them, they were afraid. कुछ लोग तो डरे हुए भी थे And yes, some of them, they were waiting for the promise of God to be fulfilled. और कुछ लोग वहाँ पे इस मनसा से आए थे कि परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने की है वो पूरी होगी। And see what happens और there. देखिए क्या होता है, Suddenly, अचानक एकाएक fuel came from above. ओ वो ईंधन उतर आता है स्वर्ग से। The Bible says, तो बाइबल बताती they है all were filled by the power of the Holy कि Spirit. जितने भी उस उपरोठी कोठरी में मौजूद थे हर एक पवित्र आत्मा से भर दिया गया। The Bible says they all were filled. लिखा हुआ है वो हर एक भर दिए गए। Yes, remember this. इस बात को स्मरण They रखिएगा, all were filled by the power of the Holy हर Spirit. एक पवित्र आत्मा की हजूरी से पवित्र आत्मा से भर दिए गए। And by the time they were there, और जब वो वहाँ पे थे and the moment they were filled by the power of the Holy और Spirit, जैसे ही एकाएक पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा से भर दिए गए, they traveled from one place to another place and then one place to another उनकी place. यात्रा शुरू होती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थानों में और नाना प्रकार की जगहों में जाकर परमेश्वर के गवाह ठहरे। Hallelujah. हालेलुया। Thomas came to India, हम जानते हैं कि उनमें से एक थोमा था जो हमारे भारत देश में भी आया। taking that fuel with him. वो उस ईंधन को वो ले आया था। Hallelujah. Hallelujah. Thank God that Thomas was there in that upper room. परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि थोमा भी उस उपरोठी कोठरी में वहाँ मौजूद था He received that spiritual fuel from above. और उसने भी स्वर्ग से उस आत्मिक ईंधन से को पाया था। I believe he traveled miles and miles around the world. मैं विश्वास करता हूँ कि वो तो कई हजारों हजार यात्रा उसने की होगी And he came to south part of India. और वो भारत देश के उस दक्षिण पात्र में आया He shook that place और उस पूरे स्थान को उसने हिला दिया for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। And we are the fruits of that. हम उसके फल हैं। हालेलुया। Hallelujah. What I mean to say this, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये सब कुछ, fuel is required. उस ईंधन की हमें आवश्यकता That's है। why we all are here. इसीलिए तो आज हम यहाँ पर इकट्ठा To हैं, receive the fuel. ताकि हम पवित्र आत्मा की और भी अधिक सामर्थ से So भरते that जाएं। wherever you go to minister with your pastor or with your leaders, तो जहाँ कहीं भी अपने पासवानों के साथ, अपने अगुओं के साथ, अपने परिवारों के साथ आप जाएं, you can go and shake the nations. तो आप जाएं और आप देशों के लिए आशीष का कारण बने And God will take all the glory. और परमेश्वर की महिमा होगी। That's why we call this session Fueling Friday session. इसीलिए हर एक शुक्रवार को हम फ्यूलिंग फ्राइडे के नाम से पुकारते हैं। I see so many people, they have joined with us tonight. तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हैं And I'm seeing that the God is going to touch you. और मैं देख रहा हूँ निश्चय परमेश्वर आज आपको स्पर्श I'm करेंगे। seeing God is going to talk with you. निश्चय परमेश्वर आपसे बातें भी करेंगे। If you're ready with your all your Bibles, अगर आप अपनी बाइबल के साथ तैयार हैं get ready for the Word of तो God. परमेश्वर के उस वचन के लिए तैयार रहें And the Holy Spirit will ignite you. और वही पवित्र आत्मा आज आपको अग्निमय Oh करेगा। yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God। I surrender all. मैं सब कुछ देता हूँ यीशु। I मैं समर्पण करता हूँ। मैं समर्पण करता हूँ। I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed मेरे उस धन्य भार करता हूँ। मैं सब कुछ देता हूँ। मैं सब कुछ प्रभु तुझे समर्पित कर देता हूँ। हाँ यीशु, Oh yes, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु यीशु। Glory to God। परमेश्वर हम आपको महिमा देते Oh, the हैं। Holy Spirit is here. पवित्र आत्मा यहाँ पे है And we know that the Holy Spirit is the Spirit of Jesus और Himself. हम इस बात को जानते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। Before we begin, I would like to tell you that you have chosen a good path. इस बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आप सब चुने हुए पात्र हैं। You have chosen a good path. आपने एक उत्तम भाग को चुन लिया है। As
Jesus said to Mary, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कहा, Mary has chosen the good portion. मरियम ने तो वो उत्तम भाग चुन लिया है। Oh, you decided not to waste your time here and there, but you sacrificially, even though maybe you are having some urgent works or some responsibilities, you dedicated this time to come in the presence of God and to listen from the हम Lord. जानते हैं कि आप सबों के पास में विशेष अपने कुछ कार्य रहे होंगे, तो भी त्यागपूर्ण रीति से आपको ये भला लगा कि आप हमारे मध्य में आज की शाम यहाँ पे आ पाए हैं, ताकि आप वचन से सीख सके, सुन सके। And this pleases God. और यही बात परमेश्वर को भाती है, This pleases Jesus. यही बात तो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करती है। Oh, Jesus loves us when we come near Him, when we sit in His presence and we say, Jesus, I want to listen from you, Lord. और प्रभु यीशु मसीह को ये बात बहुत भाती है जब हम उसके लोग होने के नाते उसके चरणों में आके बैठते हैं और कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें आपसे सुनना है। Hallelujah. Hallelujah. So let's open from His word. आइए उसके कलाम में से हम खोलें Let's read from the book of Galatians chapter 5 and we are going to read first verse 16. और हम खोलने जा रहे हैं गलातियों की पत्री उसका अध्याय 5 और उसके वचन 16 से। Galatians 5:16 says like this. और यहाँ पे गलातियों की पत्री अध्याय 5 और उसके वचन 16 को यदि आप खोलें तो वहां पे यूं लिखा है, This I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. और यहाँ पे लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। I want you to underline this word, walk in the spirit. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इस वचन को अंडरलाइन कर लें, रेखांकित कर लें, जहाँ पे लिखा हुआ है आत्मा के अनुसार चलो। Walk by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मार्फत चलो, In His guidance, उसके मार्गदर्शन में चलो, in His leading. उसके अगुवाई में चलो। Hallelujah. Hallelujah. He is the best guide. वही तो उत्तम मार्गदर्शक है। He is the greatest helper that you and me have on this planet. पवित्र आत्मा वो महान एक सलाहकार और मार्गदर्शक है जो पृथ्वी के ऊपर में हमको दिया गया है। I want to tell you मैं आपको इस बात को बताऊं, that this flesh has a lot of weaknesses. हमारा जो शरीर है इसकी अपनी कई प्रकार की कमजोरियां And we हैं। must know that there is always a war between our flesh and the spirit. और एक बात को हमें से प्रत्येक को समझ लेने की आवश्यकता है कि आत्मा और शरीर में हमेशा एक कुश्ती चलते रहती है। Oh, our mind, our flesh has different kind of thoughts and emotions that always stand against the word of the Lord, the word of the Spirit. हमारी शरीर और हमारा जो मन है वो हमेशा आत्मा और परमेश्वर के कार्य में विरोध में कार्य करने का प्रयास करता है, इसलिए वो कुश्ती लगातार जारी रहती है। So we all are in the warfare. तो हम सब एक प्रकार के मल युद्ध में हैं। But how can you overcome the lust of the flesh or the weaknesses of your flesh? सवाल अब ये पैदा होता है कि आप अपने शरीर की कमजोरियों के ऊपर में, उन शारीरिक लालसाओं के ऊपर में किस रीति से जय हासिल कर सकते हैं। Only by the power of the Holy Spirit. सिर्फ वचन के अनुसार, सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए। We can only control our flesh and the emotions and the lust of the flesh and the weaknesses by the power of the Holy Spirit that God has given us. परमेश्वर के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम अपने शारीरिक कमजोरियों और लालसाओं के ऊपर में जय हासिल कर सकते हैं। And how you do it? और आप ऐसा कैसे करेंगे? When you will listen to the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से सुनेंगे, and when not only you will listen to Him, but you will start obeying Him. न सिर्फ आप पवित्र आत्मा से सुने परंतु उसके अनुसार चले भी। See, when the Holy Spirit talks, जब पवित्र आत्मा बात करता है, sometimes it is not suitable or it is not going parallel with our own तो intellectual. कई बार जब पवित्र आत्मा बात करता है तो कई बार ये हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं होता है। It is not matching with my thoughts and emotions. ये हमारे विचार और भावनाओं से कई बार मेल भी नहीं खाता है। Maybe sometimes you have a different plan. कई बार आपकी अपनी भिन्न योजनाएं होगी, You wanted to do something else. आप कुछ भिन्न कामों को करना चाहते But होंगे, suddenly, परंतु एकाएक you will get an intervention from the Spirit of the Lord. आप परमेश्वर की आत्मा का हस्तक्षेप अपने जीवन में पाते And हैं you will hear His voice. और फिर आप उसकी आवाज को सुनते हैं And then He'll guide you. और फिर परमेश्वर का आत्मा आपको
आपकी अगुवाई करता Or है, maybe he'll stop you to go ahead with that plan. और या तो फिर वो आपको रोकेगा जो योजना आपने बनाया है उसमें आगे ना बढ़ो, Or maybe sometimes he will contradict your emotions. और या तो वो आपकी भावनाओं के विरोध में कई बार बोलेगा। So he is not doing it because he is trying to reject everything or your plans or your emotions. वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपकी भावनाओं और आपके ऊपर में दबाव डाल के सारी बातों को निरस्त करना चाहता He है। is the Lord. वो प्रभु है, He is the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा है, He is Jesus वो himself. स्वयं यीशु है। When he is controlling you, or he will not control you, but when he is bringing his things or bringing his opinion for your life, और जब वो आपके ऊपर में किसी प्रकार की बातों को लेकर आ रहा है, मतलब आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहा है, परंतु वो आपको सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। yes, he is helping you to walk in the ways of God. वो आपकी मदद कर रहा है कि आप परमेश्वर के मार्गों में चल He पाए। is stopping you to do something wrong which may cause you harm in the future. शायद वो आपको उन बातों को करने के लिए रोक रहा है जो भविष्य में आपके लिए खतरनाक हो सकती And you है। can only listen and obey to him when you surrender yourselves to him. और आप कब पवित्र आत्मा की सुन सकते हैं? जब आप संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर देते Because हैं। flesh has its own ego. क्योंकि शरीर का अपना एक अलग अहम होता है, And we never want to go down with our plans and our emotions and our thoughts and what we think is right. और कई बार हम पवित्र आत्मा के चलाए चलना नहीं चाहते। हम इस बात को सोचते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वही सही है। So you have to make yourself zero. तो इसलिए इस कारण हम कई बार अपने आप को शून्य की स्थिति में पाते We हैं। have to humble ourselves in the sight of the Lord वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर दो, and say to the Lord, that Lord, not me, but let thy will be done in my life. और फिर परमेश्वर से इस बात को कहने की आवश्यकता है कि परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। And then to say to the Holy Spirit, yes, Holy Spirit, I think that I have given so much of time to prepare this plan, but even only because if you are saying not to follow it ahead, I'm going to stop it here. आप ऐसा कहिए कि हाँ पवित्र आत्मा, मैंने लंबा अरसा, लंबा समय अपनी इस योजनाओं को बनाने में लगाया है, तो भी यदि आप कहते हैं कि मैं इस योजना को लेकर आगे नहीं बढ़ूं, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं और इस योजना को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूं। Yes, Lord, I was in this relationship for so many years, but Lord, now as you're telling me that this is not pleasing to God, oh Lord, I am going to break it and I am going to move ahead with the holiness और of God. कई बार जवान बच्चों को पवित्र आत्मा ऐसा सिखाता है कि हे बेटी, हे बेटा, ये संबंध जिसमें तू है ये तेरे लिए अच्छा नहीं है और लंबे अरसे से तू इस संबंध में है, और तो भी मैं तुझसे कहता हूँ इस लंबे अरसे के संबंध को तू छोड़ दे। और जब आप कहते हैं कि हाँ मैं इस लंबे अरसे के संबंध को छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें मुझको खतरा है, तब पवित्र आत्मा प्रसन्न होता है। And not only that, that God is going to bless you. और ना सिर्फ ये, परंतु परमेश्वर पिता आपको आशीष देते हैं। Oh, when Holy Spirit is saying no to something, remember that He is telling it for your good and और good याद and रखिए, पवित्र आत्मा किसी बात के लिए मना कर रहे हैं, मतलब वो बात आपके लिए, आपके भले के लिए। maybe you are not able to understand His plans right now according to your small intellectual. शायद आपकी उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आप परमेश्वर के बड़े योजना को नहीं समझ पा रहे हैं, But you should trust Him all the time. परंतु हर समय हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना I want चाहिए। to tell you that you are never going to regret obeying the Holy Spirit. मैं आपको इस बात को बता दूं, पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानकर आप कभी भी नहीं पछताएंगे, Never. कभी भी नहीं। Maybe for some days or maybe for some years or maybe it may possible that you're thinking that Lord, I obeyed the Holy Spirit, but I cannot see any good around me. शायद कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगे कि मैंने तो पवित्र आत्मा की बात को मानी, परंतु कुछ समय तक आपको कोई भी ऐसा परिणाम उसका नजर नहीं आए। Oh, this Holy Spirit is reminding me of the life of Joseph. और पवित्र आत्मा मुझे यूसुफ के जीवन को स्मरण दिला रहा See, है। Joseph denied the wife of his master clearly. और यूसुफ ने अपने स्वामी जो पोतीफर था उसकी पत्नी के द्वारा लाए गए प्रलोभन को उसने सिरे से खारिज कर See, दिया। Joseph was also a man like you and me. यूसुफ आपके और मेरे द्वारा ही हमारे समान ही एक व्यक्ति था, But he was walking in the fear of the Lord. परंतु एक बात जो उसमें विशेष थी वो परमेश्वर के भय में जीवन जीता That था, made him unique. और यही एक बात उसको विशेष बना दी। I believe that he was knowing that the Spirit of
of the Lord is upon him. और मैं इस बात को मानती हूँ, जानती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के ऊपर था। And he might, I think so that he might have heard from the Spirit say clearly no to this woman because she is going to destroy her life. और शायद उसने इस बात को भी सुना होगा परमेश्वर की आवाज को कि यूसुफ, ये महिला तेरे जीवन को खराब कर देगी, बर्बाद कर देगी, इसकी बात मत मान। Oh, he was tempted many a times by that woman. और यूसुफ उस महिला के द्वारा कई बार प्रलोभन में लाया गया होगा। And then at the last time he ran away, Bible says. और बाइबल बताती है कि फिर एक बार यूसुफ उस महिला के समक्ष से भाग गया। And we know that even when the Joseph obeyed the word of the Lord. और कलाम में लिखा है यूसुफ परमेश्वर के बातों को माना। Oh, he was knowing that God is watching over him. The Spirit of the Lord is here, and that's why he denied. He did good in the sight of the Lord. और उसने क्या किया? उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर देख रहा है, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, इसीलिए उसने उस बात का इनकार किया। ये बात परमेश्वर को बहुत भा गई। Oh, but what happened with him? फिर उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ? Well, nothing good started to happening. Even he was thrown into the prison after listening from the Lord and obeying him. भलाई की कुछ काम तो उसके सामने नजर नहीं आए, तो भी इस बात को करने के द्वारा उसको कैद खाने में डाल दिया गया। 13 long years he was in the prison for obeying the Lord. कलाम के अनुसार 13 वर्ष तक उसको जेल खाने में, कैद खाने में रहना पड़ा परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण। Did he does anything wrong? क्या उसने कोई गलती की थी? No, he बिल्कुल obeyed नहीं। the Holy Spirit very clearly. उसने तो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन किया, But he was in the prison. परंतु तो भी उसको कैद खाने में जाना पड़ा। Because that time he was not knowing his future. क्योंकि उस समय परमेश्वर की जो योजना थी, भविष्य में आने वाली बातों को उस समय यूसुफ समझ नहीं पा रहा He था। was in the process, in the plan of God. यूसुफ तो परमेश्वर की उस योजना के सिद्ध होने की प्रक्रिया में था। Similarly, sometimes the same incidents happen in our life. और कई बार ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। Sometimes when we obey the Holy Spirit, कई बार जब हम पवित्र आत्मा की बात मानते हैं, suddenly, एकाएक, when the Lord talks with us and we say, okay Lord, this was not my desire, but because you are telling me I am going to do this or not going to do this. और एकाएक जब कभी परमेश्वर से सुनते हैं, बोलते हैं हाँ प्रभु ये मेरी मर्जी तो नहीं, परंतु आपकी मर्जी है, ठीक है मैं आपकी मर्जी के अनुसार ऐसा करूंगा। Maybe after some time things started going wrong. और फिर आप इस बात को जान पाते हैं कि कुछ समय के बाद में कुछ चीजें आपके सामने सही नहीं बीत रही Or होती you will हैं। not be able to see anything physically good from your own sight. अपने खुद की आंखों के द्वारा आप चारों ओर देखते हैं और आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा And है। people will also started, talking against you, and they will say, oh, they say that they have heard the Lord and started the ministry, or they have heard the Lord and done this or done that, but see, they are in the prison, or they are maybe in the lack, or they are maybe sad or going through sorrow or pain. और कई बार लोग भी ऐसा सोचते हैं, लोगों ने सेवकाई तो शुरू किया था, परंतु देखो इनका क्या हर्ष हुआ, इनकी तो निंदा हो रही है, ये तो अपमान से गुजर रहे हैं, देखो किस प्रकार की इनको लज्जा से हमें गुजरना पड़ रहा Not है। only about the ministry, but anything that is going in your life right now. आपके जीवन में शायद कुछ भी वर्तमान में क्यों ना गुजर रहा But I हो, have a good news for you this evening. परंतु आज की शाम मेरे पास में आपके लिए एक शुभ संदेश है। Oh, look at the life of Joseph and see what happened next in his life. यूसुफ के जीवन को देखिए कि आने वाले समय में उसके साथ में कैसी भली भली बातें हुई। Yes, the past 13 years that when he was in jail was very tough and rough for him. उसके लिए वो 13 वर्ष जब वो जेल खाने में था, बहुत ही कठिन वर्ष रहे होंगे। So I just imagine it was not 13 months, it was 13 long years. सोचिए 13 महीने नहीं थे, वो 13 वर्ष की एक लंबी अवधि थी। But the good thing was, परंतु भली बात तो ये थी, and the great thing was, और इसमें सबसे महान बात जो हुई है वो ये even हुई, during that rough and tough time, उस कठिन परिस्थितियों के दरमियान भी oh, Joseph held on to his faith. यूसुफ अपने विश्वास में बरकरार बना Joseph रहा। was knowing it, I have heard it from the Lord and I have done what pleases my और God. यूसुफ इस बात को जानता था कि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है और मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया He है। was knowing that he is faithful to God. वो इस बात को जानता था कि यूसुफ परमेश्वर के साथ में वफादार And he है, was trusting God for his faithfulness. और इसलिए वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर में अपने विश्वास को टिकाए हुए And we था। know that when the God ordained time came, और फिर हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया एक समय, suddenly
suddenly, अचानक एकाएक Joseph was called by the king. यूसुफ उस राजा के द्वारा बुलाया जाता है And his destiny is going to change now. अब उसकी मंजिल और उसका सब चीज बदल जाने वाला Oh, है he's going to get rewarded for the obedience that he showed 13 years ago. यूसुफ ने जो 13 वर्ष पहले आज्ञाकारिता दिखाई थी उसका परिणाम उसका प्रतिफल अब उसको मिलने वाला He है has been faithful वो विश्वास योग्य बना रहा all these 13 years. इन तमाम 13 वर्षों के He दरमियान didn't grumble. वो उठवाया नहीं He didn't backslide it. वो पीछे नहीं हटा He didn't, started fighting with the Holy Spirit. The Holy Spirit, you're always guiding me wrong. Why you said this to me? वो पवित्र आत्मा के साथ में अर्थात परमेश्वर के साथ में उस लड़ाई भी नहीं किया कि परमेश्वर आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया Lord, why you told me to stop this career and start something new? और परमेश्वर आपने मुझे क्यों कहा इसको बंद कर दे उसको शुरू कर Why, Lord, you told me not to do this business but start something new? क्यों परमेश्वर आपने कहा कि इसको छोड़ दे और उसको प्रारंभ कर Oh, when Abraham came out leaving his entire household, just listening and obeying the Lord Almighty. अब्राहम भी अपने पूरे पिता की संपत्ति को सब कुछ को छोड़ के निकल गया सिर्फ किस लिए उसने परमेश्वर की आवाज को सुना When he left the house जब उसने घर छोड़ा and when he started his journey with the Lord, जब उसने घर छोड़ा और परमेश्वर के साथ में अपनी यात्रा को प्रारंभ the किया very first place Abraham reached, अब्राहम जिस प्रथम स्थान में तब पहुंचता है oh, that place was dry and barren because there was a famine. लिखा है जब जिस पहले स्थान में अब्राहम पहुंचा वो स्थान पूरा सूखा हुआ था क्योंकि उस स्थान में अकाल पड़ा था Imagine the situation. इस बात की कल्पना करिए Abraham was a well-to-do man. अब्राहम तो अच्छा धन संपत्ति वाला व्यक्ति था And the Lord told him, Abraham, come on, come out, leave your household, leave your family and follow me. और परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ सब कुछ को छोड़ और निकल जा मेरे पीछे I चल have a plan for you. मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं And he obeyed. और उसने आज्ञा माना He obeyed the Lord. उसने प्रभु की आज्ञा को माना But the very first place he reached after the obedience, और आज्ञाकारिता के बिल्कुल मानने के बिल्कुल पहले स्थान पे वो oh, पहुंचता है he took, when he reached to that destination, the destination was barren and dry. There was nothing good in there. और लिखा है जिस स्थान में पहुंचता है वो स्थान तो सूखा था वहां पे तो अकाल पड़ा It था was famine. वहां अकाल था Imagine if we could be there. कल्पना करिए यदि उस स्थान में यदि हम होते We would be starting questioning the Holy Spirit alone. हम पवित्र आत्मा से सवाल पूछने लगते I would have started asking the Holy Spirit, why are you guiding me wrong? हम पवित्र आत्मा से पूछते कि आपने मेरी गलत अगुवाई क्यों किया Why you brought me in this land of famine? क्यों इस अकाल की भूमि में आपने मुझे लेकर Or आए maybe we started grumbling or murmuring upon the Lord. या तो हम कुलकुलाने लगते परमेश्वर को कोसने लगते But these people were unique. परंतु ये लोग वचन में जिनके विषय में लिखा ये तो विशेष लोग These थे। were amazing people of faith. ये विश्वास के विशेष लोग थे I want to tell you that the Holy Spirit wants you and me to become faith warriors. और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम में से प्रत्येक विश्वास का एक अच्छा योद्धा बन The जाए commandos of faith. विश्वास के अच्छे योद्धा बन जाओ History makers. एक इतिहास को बदलने वाले बन Why जाओ we are remembering Abraham today? हम आज क्यों अब्राहम को याद कर रहे Why we हैं are remembering Joseph? हम क्यों यूसुफ को स्मरण कर रहे Because they हैं were the commandos of faith. क्योंकि ये लोग तो विश्वास के अच्छे योद्धा They were the थे commandos of obedience to the Holy ये तो Spirit. पवित्र आत्मा के परमेश्वर के अच्छे आज्ञाकारी व्यक्ति थे So we know that Abraham got the promised land. तो हम इस बात में जानते हैं कि अब्राहम प्रतिज्ञा के उस भूमि पहुंचता है And similarly, और बिल्कुल वैसे ही Joseph became the prime minister of Egypt. यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है Hallelujah. Hallelujah. It all started by listening from the Lord and obeying Him. और ये कब शुरू हुआ जब यूसुफ और अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना That means it all started by walking in the Spirit. कहने का मतलब ये है ये तब शुरू हुआ जब वो पवित्र आत्मा के परमेश्वर के चलाए चलने लगे Walking by the Spirit of the Lord is the key to reign in your life. पवित्र आत्मा के अनुसार चलते रहना आपके जीवन की सफलता की मुख्य कुंजी है See, we all are destined to reign in Christ. याद रखिए हम मसीह यीशु में राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं We are the inheritors of Abraham's blessings. हम अब्राहम की आशीषों के वारिस हैं Even we are more than Abraham. हम तो अब्राहम से अब मसीह यीशु में हम अब्राहम से बढ़कर हैं Abraham was the servant. अब्राहम तो दास था Joseph was the servant. यूसुफ भी तो भी दास था But you and me, we are not at all servants. परंतु आप पर मैं अब
दास नहीं रहे। We are the beloved children of God, Bible आप says. और मैं बाइबल के अनुसार मसीह यीशु में होकर परमेश्वर की प्रिय संतान बन चुके So हैं। if Joseph could reign on Egypt, यदि यूसुफ उस समय में आज्ञा का पालन करके मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन सकता by था, walking in the law, in the spirit, and by obeying the Lord, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी बात को मानते हुए, so today as you and me, as a beloved children of God, we can also reign. तो जरा याद करिए, अब तो आप और मैं परमेश्वर की संतान है। यदि आप और मैं जब परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, पवित्र आत्मा की चलाए चलेंगे, तो हम कितना अधिक राज्य करेंगे। Walking in the spirit, आत्मा के अनुसार चलना, walking by the spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए saying चलना, no to the flesh. शारीरिक लालसाओं को मना करना। It's not only about adultery or lust. ये किसी प्रकार का व्यभिचार के विषय में मात्र नहीं है, Oh, it's also about worry. ये चिंता के विषय में भी It's है, also about fear of tomorrow. ये कल की चिंता के विषय में भी It's है, also about depression. ये अवसाद के विषय में भी It's है, also about the situations or storms that you are in right now. ये आप नाना प्रकार की परिस्थितियों के दरमियान जब हैं, आप क्यों हैं, इस विषय में भी है। Right now, if you're having any kind of worry, आपके पास में किसी प्रकार की भी चिंता क्यों ना or हो, any anxiety or fears, किसी प्रकार का भी अवसाद है, किसी प्रकार की भी कल की चिंता, I want to tell you, मैं आपको एक बात बताऊं, start walking in the Spirit. पवित्र आत्मा के चलाए चलना शुरू Start करिए। walking by the Spirit. पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए। Listen to Him every day. पवित्र आत्मा से प्रतिदिन सुनते रहिए। See, we have to train our ears to hear from the Lord. याद रखिए, हमें अपने कानों को इस प्रकार से अभ्यासरत करना है कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुन See, सकें। my daughter is very small. She's just 2.9. मेरी बेटी अभी 2 साल 9 महीने की छोटी But बेटी है। even if in the crowd of 100 people, I will call out her name, she will immediately respond and say, "This is the voice of my mother." और यदि 100 लोगों की भीड़ में भी यदि मैं अपनी बेटी को पुकारूं तो मेरी आवाज को पहचान जाएगी, कहेगी ये मेरी माँ की आवाज है। How? कैसे? Because every day she hears from me. क्योंकि प्रतिदिन वो मुझसे सुनती है। Every hour we are together and we talk to each हर other. दिन घंटों हम साथ में समय बिताते एक दूसरे से बात करते हैं। That's how her ears are trained to recognize my और voice. इसीलिए मेरी बेटी के कान मेरी आवाज को सुनते सुनते अभ्यासरत हो गए। We are having an intimate connection with each other. एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध है। So until unless you do not have any connection with the Holy Spirit, इसलिए जब तक कि आपका घनिष्ठ संबंध पवित्र आत्मा के साथ में नहीं होगा, until unless you will not spend an intimate close time with Him, जब तक कि आप पवित्र आत्मा के साथ में बड़े घनिष्ठता का संबंध नहीं बिताएंगे, until unless you will not sit and talk to Him or listen to जब Him. तक कि आप पवित्र आत्मा के साथ में उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी सुनने का प्रयास नहीं करेंगे। See, it's not that the Holy Spirit comes when you come here for the Fueling Friday or to Sunday service and then He goes away and then rests somewhere. ऐसा नहीं है कि आप जब किसी रविवार को अपने कलीसिया में जाते हैं या फ्यूलिंग फ्राइडे सर्विस में इस स्थान में आते हैं तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके साथ रहता है और फिर चला जाता है। ऐसा नहीं He है। is the Holy Spirit is not on and off in your life. आपके जीवन में पवित्र आत्मा का आना जाना लगा हुआ है, ऐसा नहीं No, है। no, no. He is with you. He is in you forever. पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके साथ है हमेशा के लिए। Oh, when you're walking, when you're talking, when you're walking, when you're cooking, when you're bathing, whenever, whatever you're doing, each and every moment He is in you. He will never leave you. जब आप खाना बनाते हैं, नहाते हैं, बातें करते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ जो भी आप जीवन में अपने प्रतिदिन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपके साथ है। Recognize yourself as a temple of the Holy Spirit. याद रखिए, आपको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है कि आप स्वयं मसीह यीशु में होकर आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन चुके हैं। He is in me. वो आपके अंदर वास He करता है, is dwelling in वो me. मेरे अंदर रहता है। Even when I'm making stupidity. कई बार जब मैं मूर्खतापूर्ण काम को भी कर बैठूं, Oh, I know that He is in me then also. तो भी वो मेरे मूर्खतापूर्ण कार्यों के दरमियान भी मेरे अंदर बना He is हुआ है। trying to help me or to stop me. वो मुझे रोकता है और मेरी मदद करता है कि दोबारा मैं ऐसा ना करूं। The problem comes when I avoid Him. और समस्या तब शुरू होती है जब हम पवित्र आत्मा को सिरे से नाकार देते I हैं। tell the Holy Spirit, you take some rest. Let me take some decisions for my life. यदि मैं ऐसा कहूं कि पवित्र आत्मा आप कुछ दिन के लिए आराम करिए, मेरे जीवन के लिए मैं खुद अपना निर्णय लेना चाहता हूं, Oh, this is an alarm for danger in your तो life. ये एक खतरे की घंटी बज गई। मतलब We are so privileged
privileged in Jesus हम प्रभु यीशु मसीह में इतने आशीषित और सौभाग्यशाली लोग हैं that we have 24/7 365 day help from the Lord. कि हमारे पास में 24 घंटों 365 दिन परमेश्वर की मदद मौजूद है, Because we have the helper in us. क्योंकि वो सहायक जिसका नाम पवित्र आत्मा है हमारे अंदर रहता है। And he will only work in your life when you will allow him to work. और अच्छी बात तो ये है और विशेष बात जो ये है वो तभी आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा, कार्य करेगा जब आप उसको अनुमति देंगे। He will never force you. वो आपके ऊपर कभी दबाव नहीं डालेगा। He is never going to just try to just stuck your life. वो आपके जीवन को कहीं ऐसे जगह में फंसा के नहीं रख देगा। No. He बिल्कुल नहीं। will very gently, वो- with so much of love, he will guide you. वो बहुत ही एक कोमल ढंग से आपकी अगुवाई करेगा, आपको मार्गदर्शित करेगा। You must learn to hear his gentle voice. ये जरूरी है कि आप उसकी कोमल शीरीन आवाज को सुनना समझ जाएं। It's very funny also, some people think when there is a lot of noise, there is a lot of sound, then only Holy Spirit moves. और कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि जब जहाँ बहुत आवाज है, बहुत शोरगुल हो रहा है, उसी स्थान में या उसी कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है। No, even when you sit in the corner of your house with the word of God and you start praising him, start talking to him, start adoring Jesus, Holy Spirit start manifesting his power. और जब कभी आप अपने घर के कोने में बैठकर बाइबल को लेकर आप उससे बात करते हैं, पवित्र आत्मा वहां पर भी आपसे बोल सकता है, बात कर सकता है, अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर सकता है। Right now, as we are here as a group of people, Holy Spirit is manifesting His power जैसे here कि through आज His की word. शाम हम यह सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, पवित्र आत्मा अपने वचन के मार्फत यहाँ पे अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर रहा I've है। experienced personally in this my life when it happens most of the time. Whenever I'm cooking, I get the best strategies from the Holy Spirit. और मैंने अपने जीवन में हमेशा इस बात को पाया है, जब कभी मैं खाना बना रही होती हूँ, वो ऐसा समय होता है जब पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है और मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए एक अच्छी खासी रणनीति या योजना उस दरमियान पर पवित्र आत्मा मुझको देता And है। not only he displays the big visions and dreams only. और ना सिर्फ वो बड़े योजनाओं और सपनों को मुझको दिखाता है, Oh, for each one of us. हम में से प्रत्येक के साथ ऐसा But होता He will है, also guide you for the small little things in your life. परंतु वो आपके जीवन की छोटी छोटी बातों में भी आपकी अगुवाई करता है और करना चाहता Yeah, है। sometimes when we are engaged in multiple things, कई बार जब हम बहुत सारी चीजों में अपने आप को हम व्यवस्थित व्यस्त कर लेते हैं, maybe sometime when I keep my gas on and I started playing with my daughter, I completely forget about my kitchen. और कई बार किचन में गैस ऑन रह जाता है और बेटी के साथ मैं खेलती रहती हूँ, इस बात को भूल जाती हूँ, And suddenly I hear the Holy Spirit. और फिर अचानक पवित्र आत्मा की वो शीन आवाज मुझको आती है And He always says to me, dear daughter, go and please off the gas. और वो बोलता है बेटी जा और उस गैस को बंद कर क्योंकि वो चालू है। This little things He will guide you. वो छोटी छोटी बातों में आपकी अगुवाई करेगा। In your job place, आपके कार्य क्षेत्र में when you have a lot of जब pressure, आपके जीवन में बहुत दबाव होता maybe है, you are going through seeing a lot of politics around you. आपके चारों नाना प्रकार की राजनीति खेली जाती है, Oh, Holy Spirit will help you to just overcome all your battles. पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा कि आप अपने तमाम प्रकार के इस प्रकार की लड़ाइयों के ऊपर में जय हासिल Oh, when करें। people will come to you and they'll say, pray for me. और जब लोग आपके पास आते और कहते हैं कि कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करिए, Oh, Holy Spirit will start ministering to them through your life. आपके जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करेगा। See, your prayer will be ineffective without the power of the Holy Spirit. याद रखिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आपकी प्रार्थनाएं और आपका जीवन अप्रभावी Your होगा। worship is ineffective without the presence of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बिना, उसकी उपस्थिति के बिना आराधना भी अप्रभावी होता है। Oh, have so 100 of instruments. Let people play them. Let people sing in such good voices with good songs. It will just turn into an entertainment for a time being if the Holy Spirit is not inside you. अच्छी आवाज में, अच्छे वाद्ययंत्र के साथ में बहुत अच्छा गीत गाया जा रहा है, परंतु यदि पवित्र आत्मा वहां पे नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। Oh, even if in my preaching, मेरे प्रचार के दरमियान if भी I just come prepared from Google or if I just come prepared from copying pasting
someone, और यदि मैं अपने संदेश को ऐसे तैयार करूं कि मैंने गूगल से निकाल लिया या किसी अन्य लोगों का संदेश को मैंने ले लिया और यदि ऐसा प्रचार करूं, oh, it will just entertain you for half an hour. आधे घंटे के लिए ऐसा संदेश आपको मनोरंजित करेगा, But while going from here, you will be emptied. और यहाँ से जाने के बाद आप अपने आप को खाली महसूस You करेंगे। will not have any power in your life. आपके जीवन में कोई सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं होगा। But when I listen from the Holy Spirit and preach here, परंतु जब संदेश को तैयार करते समय मैं पवित्र आत्मा से सुनता हूँ और फिर संदेश को तैयार करता हूँ। see, for this evening I prepared another message completely. और आज की शाम मैंने एक बिल्कुल ही भिन्न संदेश को तैयार किया I था prepared this 8 pages about prayer. और प्रार्थना के विषय में मैंने आज की शाम संदेश तैयार किया And था। suddenly when we started worshiping here this evening, और आज की शाम जैसे हम सब मिलकर यहाँ पे हम आराधना करने शुरू Holy किए, Spirit took me to Galatians 5:16. पवित्र आत्मा मुझको गलातियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 16 में लेके And गए he told me very clearly, just open your mouth and leave everything rest to me. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझको कहा वहां खड़ी हो जा और सिर्फ अपने मुंह को खोल, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। I know what my people want. और पवित्र आत्मा ने कहा मुझे मालूम है मेरे लोगों की वर्तमान आत्मिक आवश्यकता क्या है। And when you will walk in the Spirit, और before I जब- conclude, I tell you इससे this. पहले कि मैं समाप्त करूं मैं आपको बताऊं कि जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलने का निर्णय लेते हैं And when you are walking by the और Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे होते हैं, you will fall in love with the Word of God. आप परमेश्वर के वचन के प्रेम में पड़ जाएंगे। When Holy Spirit comes inside you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, oh, He will give you hunger and thirst for the presence and for the Word of God. पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास को लेकर आएगा। See, if you're telling me that you're filled and baptized by the Holy Ghost, यदि आप मुझे ऐसा कहते हैं कि आपका बपतिस्मा हुआ है और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, but you have opened your Bible last year, परंतु यदि आप मुझको ऐसा कहते हैं कि मैं पिछले वर्ष अपनी बाइबल को खोली थी और या खोला you था, are saying me that I just read my Bible Sunday to Sunday, या आप ऐसा कहें कि मैं रविवार से रविवार ही अपनी बाइबल को पढ़ता हूँ, then I'm so sorry to say you are not knowing the Holy Ghost. तो मैं मुझे माफ करिए ऐसा कह रही हूँ मैं, तो आप पवित्र आत्मा को नहीं जानते। When the Holy Spirit is in me, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास oh, करता the है, Word of God acts as an oxygen for my life. तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए मेरे आत्मिक जीवन के लिए वो ऑक्सीजन का कार्य करता In है। each step of my life, Holy Spirit will tell me, I will reveal the will of God to you. Read His Word. और पवित्र आत्मा हर समय हर घड़ी मुझको इस बात को बोलेगा, जैसे बेटी तू मेरे पीछे चल रही है, तू वचन को पढ़, मैं वचन के मार्फत परमेश्वर की सिद्ध मर्जी को तेरे जीवन के लिए और तेरे लोगों के जीवन के लिए पूरी He करूंगा। confirms His every word through the Word of God. और परमेश्वर अपने तमाम मर्जी को उनकी योजनाओं को वचन के मार्फत हमारे सामने प्रकट करता है। Holy Spirit will not talk anything or not do anything which is against the Word of God. हमेशा याद रखिए पवित्र आत्मा कोई भी ऐसे कार्य को नहीं करेगा जो वचन के विरोध में हो, Never. कभी भी नहीं करेगा, Because He Himself is the Word. क्योंकि वो स्वयं वचन है, He is the Word. वही वचन है, He is the Jesus. वो स्वयं यीशु है। Hallelujah. Hallelujah. It is important for each one of us as we are here to be ignited from the Lord. ये हमारे जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जैसे हर शाम हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। Oh, that Holy Spirit is a fire. याद रखिए पवित्र आत्मा वो अग्नि है, Oh, Holy Spirit is that ignition. पवित्र आत्मा वो इग्निशन है जिसके मार्फत आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ता Yeah, है। that keeps me running towards the destiny. याद रखिए पवित्र आत्मा वो फ्यूल है, वो ईंधन है जिसके मार्फत मैं अपने मंजिल तक पहुंचता हूं। Running the race that God has kept in front of me. उस दौड़ को मैं पूरी करने जा रहा हूँ जो दौड़ परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। If you have that zeal and passion for Jesus, यदि आपके पास में प्रभु यीशु मसीह के लिए वो लगन और भूख और प्यास है, if you have encountered Jesus, यदि आपका मुलाकात यीशु से वास्तविकता में हुआ if you है, are really saved and born again and you know that Jesus Christ has saved you from sin and death, यदि आप वास्तविकता में नए जन्म पाए हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है, then God has called you to run a
a race. तो परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप एक दौड़ को पूरी करें। Not to just sit still and enjoy the beauty of the church. ये ऐसा नहीं है कि आप एक स्थान में बैठ के कलीसिया की सुंदरता को बस निहार रहे हैं। No. You are called to run. आप दौड़ने के लिए बुलाए गए And the हैं। Bible says, run to win. और वचन में लिखा हुआ है ऐसे दौड़ो कि जीतो। Run to win, Bible says. बाइबल बताती है कि ऐसे दौड़ो कि जीतो। And we can only win by the power of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस दौड़ को जीत So सकते let's हैं। not only walk in the Spirit, let's run in the Spirit. इसलिए आइए ना सिर्फ पवित्र आत्मा के अनुसार चले, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार दौड़े भी Each day. प्रतिदिन। And you will see a great change in your और life. आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव You को will see a great change in your ministry. आप अपनी सेवकाई में बड़े बदलाव को You will देखेंगे। see a great change in your complete surroundings. आप अपने चारों ओर एक बड़े बदलाव को देखेंगे। You are going to experience the supernaturals of God in your आप life. परमेश्वर की अलौकिकता को अपने जीवन में देखने You will पाएंगे। see the open heavens. आप स्वर्ग को खुला पाएंगे। You will draw more and more near to Jesus each day. और प्रतिदिन जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, आप यीशु मसीह के निकट पाए You will जाएंगे। be able to seek His face. आप उसके चेहरे को खोजेंगे Hallelujah. Hallelujah. And He is going to reveal His secrets to you. और वो अपने रहस्यमय बातों को आप पर प्रकट करेगा। And He is going to make you more than conqueror in your life. और वो आपको आपके जीवन में जयवंत से भी कहीं ज्यादा बनाएगा। And we are never going to regret obeying the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करके आप और मैं कभी भी नहीं पछताने वाले। Walk in the Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा के चलाए चलिए, Run in the Spirit. पवित्र आत्मा के चलाए दौड़िए, Because you're destined to reign. क्योंकि आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Let us pray together. आइए एक साथ प्रार्थना करें। Lead us. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we come before you. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के नाम से खुदा बाप हम आपके चरणों में आते हैं। And Lord God, we are so much grateful and thankful to you that today once again you have reminded us that is very, very important for us. ओ प्रभु धन्यवाद, आज आपने बहुत से महत्वपूर्ण बात को हमें स्मरण दिलाया। Father, I pray that every individual who have heard this, हर एक व्यक्ति प्रभु जो इस संदेश को सुनता है या सुनेगा, sitting here with us or watching us online, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है या फिर ऑनलाइन जुड़े हैं, Lord, I pray that each one of thy children must be touched by the power of the Holy Spirit. हाँ प्रभु, हर एक खुदा बाप आपकी पाक रूह से पवित्र आत्मा से स्पर्श किए जाए। Father, I pray that you touch them and heal them if any one of thy children are sick. प्रभु, अगर कोई भी आज यहाँ पर बीमार है तो आज यीशु मसीह के नाम से चंगाई उतर आए। Father, I pray for name by name for all your children of नाम God बना हर एक को प्रार्थना में उठाते हैं प्रभु जी। who are sitting here and who are watching us हर live. एक को प्रभु यीशु मसीह, Father, you talk with हर them. एक से बोलिए, बातचीत करिए। Help them to to walk according to the Holy हर एक Spirit. की मदद करिए प्रभु कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। Bless them, Lord. हर एक को बरकत दीजिए। In Jesus' sweet name we प्रभु pray. यीशु के मीठे नाम से दुआ करें। Amen, amen, and amen. Now receive the blessing of God. आइए हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता हमें आशीषित रखे, हमारी रक्षा करे। May the Lord make His face to shine upon you परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश हम पर and चढ़ाए, be gracious to हम you. पर अनुग्रह करें। May the Lord lift up His countenance upon you परमेश्वर पिता अपना मुख हमारी ओर करे and give you His और हमें अपनी peace. शांति दे। In Jesus' sweet प्रभु name. यीशु के सामर्थी नाम से। Amen, Amen. amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I firmly believe that today the Lord has talked with मैं you. विश्वास करता हूँ कि निश्चय प्रभु ने आपसे बातें की And if the Lord has talked with you और यदि आपने प्रभु से आवाज सुनी है and you want to be a blessing for others, और आप दूसरों के लिए भी आशीष बनना चाहते हैं, share this video with them. तो आप निश्चय ही इस वीडियो को शेयर कर सकते And by sharing this हैं video, और इस वीडियो को शेयर करने के द्वारा, by sharing this sermon video, इस संदेश को बांटने के द्वारा, that will be a contribution of yours in this ministry. और सेवा में परमेश्वर के राज्य में ये आपका योगदान And होगा God will reward और you. निश्चय प्रभु इसका आपको God प्रतिफल will देंगे। surely reward you. निश्चय आप प्रतिफल पाएंगे। See you next week. आने वाले हफ्ते आपसे मुलाकात। God bless you. God bless you.